Well, I hope you are able to see the Word file and me as well. And today we are going to discuss about the nationalistic history writing in India. So far in this semester, we have studied about the two important trend. दो महत्वपूर्ण जो ट्रेंड है इतिहास लेखन के जो यहाँ पर कॉलोनियल पीरियड में शुरू हुए थे। एक तो था ओरिएंटलिस्ट हिस्ट्री राइटिंग, पौरवत्यवादी इतिहास लेखन, और एक तो था इंपीरियलिस्टिक हिस्ट्री राइटिंग, साम्राज्यवादी इतिहास लेखन। और हमने लास्ट क्लास में देखा है कि in imperialistic history writing, there was a general trend to demean the Indian tradition. Am I right? Please confirm if the imperialistic history writing we have covered in the last class. Somebody? Yes, sir. Well, okay, fine. So, because I teach paper in both the semesters, so sometimes I both the medium English and Marathi, so I get sometimes confused. Well. So now, in that imperialistic history writing, the general trend was to demean the Indian tradition. उन्होंने भारतीय परंपरा को एक हीन संस्कृति थी। भारत के लोग they are not capable to unite together. They are not. They had been always defeated by the people coming from outside. यहाँ के जो रूलर्स थे वो बहुत ही टायरेनिकल थे। यहाँ का जो पॉपुलेशन था दे लैक एनी सेंस ऑफ मोरालिटी। इस तरीके के विचार उन्होंने अपने इस साम्राज्यवादी इतिहास लेखन में परकोलेट करने की कोशिश की। नाउ if you continue to criticize a particular society, the time will come when from that society people will rise and they will take a stand that you are constantly criticizing us and this is not a right thing. We do have certain good thing in our society and that needs to be highlighted too. And with that intention, this nationalistic school of history writing have started in India, and it was in a way, by and large, a kind of reaction against the imperialistic attack on the Indian tradition. So let us let us try to understand what in general the nationalistic historian have tried to do is that they have tried to glorify the Indian tradition, and at the same time they have also tried to project that India, in spite of this diversity, is a unified country. जिस तरीके से वेस्ट के लोग या इंपीरियलिस्टिक हिस्टोरियन कहते थे कि यहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना नहीं है, उसको उन्होंने काउंटरैक्ट करने की कोशिश की। दे सेड कि नहीं, यहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना जरूर थी। तो इसके पीछे के जो कॉजेस है why the nationalistic history writing have started, let us try to do that. So the causes is, there is a search for national identity. When any society becomes educated, they always try to search for a kind of national identity, and your identity is generally based on your history and tradition. For example, the people of Maharashtra, their national identity is based on, there is a significant foundation of the pride in being, in the land where Chhatrapati Shivaji was born. So that gives a sense of identity. Indian people, they started when you become aware, when you become educated, you started looking for your roots. कहाँ से हमारा civilization आया है, कहाँ से हमारी सभ्यता आई है, all that sort of thing you try to study. So the search for national identity, you think that became important reason that the national history writing have started in India. नेक्स्ट यहाँ पर जैसे ही वेस्टर्न एजुकेशन शुरू हुआ वेस्ट बंगाल में, और वेस्टर्न आइडियाज ने, इट वाज अ काइंड ऑफ अटैक ऑन द कल्चर, एंड द educated Indian people, they used to reject their own tradition and try to copy the Western tradition. उसी तरीके से कपड़े पहनना, इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ना, उसी तरीके का व्यवहार करना, all that sort of things have started, and this has provoked a kind of reaction among the educated nationalistic people, and they started thinking that this is not a right thing to do. We need to study and preserve all those things that is prominent in the Indian tradition. Is Uddesh se bhi, because of this desire also people have started studying Indian culture and started writing history from the nationalistic perspective. This reason I have already told you. The imperialistic, like James Mill, in his History of British India, he had a specific objective to prove that the Hindus, they have excelled in the qualities of slave. And this trend was generally followed by most of the British historian. Vincent Smith, जो imperialistic historian थे, they praise that Alexander could defeat Indian people because the Western arm, Western
forces, they are always stronger, they are more advanced, and the Indian people are always backward. And through their writing, the imperialistic historian, they generally try to prove that Indians are not capable in uniting and ruling themselves. And this made the British rule has to be permanently here in order to regulate the Indian people. And the Indian people, through imperialistic history writing, were constantly reminded that India was never free. Indian had been always defeated and dominated by the people coming from outside. And this has provoked a kind of nationalistic reaction among the Indian educated class. Elphinstein, he believed that Indian foreign trade was conducted by Greek and Arab, and he also believed that Indians have, the many this imperialistic historian, they believed that Indians, they have mostly most of their culture from Greek, Babylonian, Assyrian, Persian, and so on. So this imperialistic historian, they constantly targeted the weak point of the Indian culture and religion. And Christian missionaries, they tried to highlight the superstitious among the Hindus. And so a nationalistic historian who they stood up and they started claiming that this is not a right thing. And there had been a like a adverse reaction also. There had been a exaggeration in the writing of nationalistic historian quite often. जैसे कि कई बार वो अपनी भारत की परंपरा को बहुत ज्यादा प्रशंसात्मक तरीके से भी पेश करने की उन्होंने कोशिश की, और भारतीय लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा बताने की भी कोशिश की. उसमें से एक उदाहरण है सावरकर की किताब जो उन्होंने 1857 के विद्रोह के ऊपर लिखी थी. तो ये इस तरीके की गलतियां तो जरूर हुई है, लेकिन इसके बाद भी राष्ट्रवादी इतिहास लेखन एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय रहा है इतिहास लेखन में. दिस इज important chapter in the writing of the Indian history writing that has emerged during the colonial period. और भारत का धर्म, भारत का समाज, इसको उन्होंने उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की. इस हिस्टोरियन के आने से पहले कई रिफॉर्मर्स भी थे जिन्होंने इस तरीके से भारतीय परंपरा को उसको डिफेंड करने की, उसको बचाने की कोशिश की, जिसमें थे राजरंजन बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी, दयानंद सरस्वती वगैरह. नाउ लेट अस गो टू द टू इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन, एंड आउट ऑफ दिस टू, वन इज केपी जायसवाल, काशी प्रसाद जायसवाल, 1881 to 1937. And he was educated at Oxford, and he was lawyer by profession. But after coming back to India, after running his education at Oxford, he plunged into the nationalistic research, and then he started writing books on ancient Indian heritage. And there are two of his books which are very famous. दो किताबें उनकी काफी famous है. Hindu Polity 1918 and History of India AD 150 to 350. Hindu Polity जो है that turned out to be a very immense success. And through this, Jaiswal proved that India had earliest and most successful republic. All right. And according to him, समिति, देखिए वैदिक वो जो लिटरेचर था उसका उन्होंने अध्ययन किया, और इसमें जो शब्द मिलते हैं सभा, समिति, गण, इसका अध्ययन करके उन्होंने इस बात का निष्कर्ष निकाला कि उस समय भी यहाँ पर भी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल वाज बीइंग फॉलोड इन द एडमिनिस्ट्रेशन. जिस तरीके से इंपेरियलिस्टिक हिस्टोरियन ये कहने की कोशिश करते हैं कि इंडियन पीपल हैड नो इंटरैक्शन, और इंडियन पीपल वेर नॉट अवेयर ऑफ एनी काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, and they were very tyrannical, very power hungry, and they had no control over their power. KP Jaiswal, through his writing, has tried to erase this opinion and tried to project that it's not right. Indian people did had the democratic institution like Sabha and Samiti, Gana, जहाँ पर लोगों के प्रतिनिधि हुआ करते थे, और the decision, important decisions used to be taken after due consultation and due discussion. That is what he tried to project through his writing. Well, then this book Hindu Polity, that is what he tried to do in his Hindu Polity. Like he also discusses that Pura and Janapada were also a political institution. Then his next book, that is History of India, here he takes up a challenge, another challenge that is given by the imperialistic historian. According to imperialistic historian, Indian people had no sense of nationalism, no sense of unity, and that is the reason
they were repeatedly defeated by the people coming from outside. Well, so here in this book, he proves that convincingly in History of India that there was people called Bhairasiva Naga, and these people, they unified the Indian people of northern India and they fought against the foreign invasion of Shaka and Kushana. So he tries to erase out the accusation that the Indian people have no capacity to unite and they are always divided among themselves. So this is about KP Jaiswal's book. You must remember two of his book, that is Hindu Polity and History of India. And what he tried to do, that is, to convince to the reader that the democratic institutions were existing in India in ancient period. At the same time, the British, the imperialistic historians claim that there is a lack of unity among the Indian. That also he tries to erase out. Well, now let us go to the next important nationalistic historian, that is Muhammad Habib. Muhammad Habib was Muslim intellectual, and the Muslim intellectual of the period, they faced double attack. First attack is from the imperialistic historian, and imperialistic historian attacked Hindu as well as the Muslim tradition, trying to prove that West is better, Western culture is better, Christianity is much better. So that was one attack. Now, when the Britishers, they started their rule in India, it was and they started they brought this Western education. In comparison to the Muslim, the Hindus have adopted the Western education much earlier, and among them, intelligentsia, the class of intellectuals, educated intellectuals have developed, and they started writing history, and they started writing history from the nationalistic perspective. And in their history, it is mostly the ancient India, that is pre-Islamic India, which was over glorified. मुस्लिम धर्म भारत में बड़े पैमाने पर मध्यकाल में आया, लेकिन उसके पहले का जो इतिहास था, जिसको हिंदू पीरियड अभी कई लोग बोलते थे, उस पीरियड के बारे में उन्होंने ज्यादा लिखान किया और उस पीरियड की प्रशंसा करने की कोशिश की। अब उस तरीके का इतिहास लेखन में एक एक विचार ये भी उस तरीके के इतिहास लेखन में था कि हिंदू पीरियड जो था उस समय काफी हमारा भारत जो था काफी विकसित था, काफी प्रोग्रेसिव था, एंड इट इज ओनली विद द कमिंग ऑफ द मुस्लिम दैट द डिटोरिएशन हैव स्टार्टेड. दैट इज व्हाट they try to project now. So the Muslims are being projected as the invader and destroyer of the Hindu civilization. So the Muslim intelligentsia, intellectual like Muhammad Habib, has to meet both the challenges. Sir Syed Ahmad Khan जो थे, उन्होंने भी काफी काम किया था. They asked the Muslim to take up the Western education. सर सैयद अहमद खान के ऊपर इस तरीके का जो लिबरल जो एटीट्यूड था, लिबरल जो दृष्टिकोण था, उसका प्रभाव भी काफी हुआ था. ही वॉज ट्रेन इन द वेस्टर्न मेथड, वेस्टर्न क्रिटिकल मेथड एज वेल, एंड the rule of sultanate during the medieval period was generally projected as a rule of the foreigner. And this suited them. The imperialistic historian, they tried to project the rule of the Sultanate or that medieval period as a period of conflict between the Hindus and Muslims. Hindus were repeatedly defeated and the Muslim, they imposed their religion. इस तरीके का लिखान उन्होंने अपने लिखान में किया, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था. एंड मोहम्मद हबीब, लिटिल बिट बैकग्राउंड, मोहम्मद हबीब फादर मोहम्मद नसीम, ही वाज बैरिस्टर एट लखनऊ, और मोहम्मद हबीब की जो पत्नी थी सोहिला तैयब जी, शी वाज डॉटर ऑफ अब्बास तैयब जी. एंड अब्बास तैयब जी अपने आप को महात्मा गांधी के शिष्य मानते थे. ही वाज डिसाइपल ऑफ महात्मा गांधी, एंड दैट इज द रीजन वी फाइंड दैट इन हिज होम देयर वाज अ ट्रेडिशन ऑफ द नेशनलिस्टिक फीलिंग. वेल, मोहम्मद हबीब ने अपनी शुरू की पढ़ाई मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो अलीगढ़ बाद में जाके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना, वहां से उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की. और बीए के एग्जामिनेशन में वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से टॉपर थे. उस समय अलीगढ़ यूनिवर्सिटी नहीं थी, तो ये मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है अलीगढ़ का, दैट वाज एफिलिएटेड टू द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी. एंड देन आफ्टर दैट ही वेंट टू ऑक्सफोर्ड फॉर हायर स्टडीज, एंड वहां पर भी उनका ही गॉट इनिशिएटेड इनटू द नेशनलिस्टिक फीलिंग, क्योंकि वहां पर भी जो भारतीय लोग हुआ करते थे इंग्लैंड में और ऑक्सफोर्ड में भी जो पढ़ते थे,
वो जो यंग यूथ था, दे स्टार्टेड फॉर्मिंग एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ऑक्सफोर्ड मजलिस, and they started calling different important leaders who were nationalistic leaders from India, as well as the leaders who were in England, but they had sympathy for the India's cause. So here Sarojini Naidu was called, and Maulana Muhammad Ali, जो कि कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, उनको भी बुलाया गया, और उनके संपर्क से he came in contact with these people, and that has further increased his interest in the nationalism. Later on, after earning his education, Maulana Muhammad Ali, he asked Muhammad Habib to come back to India, and Muhammad Habib, after coming back to India, he started working at Jamia Millia Islamia, the university. And but he never became a regular staff, and non-cooperation movement में फिर उन्होंने नौकरी छोड़ दी. He joined non-cooperation movement, but after non-cooperation movement he joins Aligarh University, first as a reader and then he becomes a professor. जो imperialistic historian थे, उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांट दिया था. ये कल भी हमने पढ़ा है, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड ब्रिटिश पीरियड. और मोहम्मद गजनी के ऊपर जो मोहम्मद हबीब की जो किताब आई, सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी, that is a very important book, and that gives us an insight about what the what he wanted to do actually. Sultan Muhammad of Ghazni, he is being generally projected by the imperialistic historian or by the Hindu nationalistic historian as a kind of invader who destroyed large number of temples. Muhammad Ghazni ने ऐसा कहा जाता है कि 17 बार भारत के ऊपर आक्रमण किया, कई सारे मंदिरों को तोड़ा, लूटा, सोमनाथ का मंदिर भी तोड़ा, और ये सारी लूट लेके और कई लोगों को गुलाम बना के वो गजनी में ले जाता था. जिस तरीके से हिंदू लोग उसको अपना शत्रु मानते थे, उस तरीके से मुस्लिम लोगों में भी एक विचारधारा शुरू हो गई कि मोहम्मद गजनी इज अवर हीरो, क्योंकि उसने इस्लाम का प्रसार किया. मोहम्मद हबीब ने जो किताब लिखी, उसमें सबसे पहले तो उन्होंने मुसलमानों को यह समझाने की कोशिश की कि मोहम्मद गजनी को आप अपना हीरो मत मानिए, क्योंकि उसने इस्लाम के लिए जो काम किया है उससे इस्लाम का भला नहीं हुआ है, बल्कि इस्लाम धर्म ज्यादा बदनाम हुआ है. उनका कहना यह था कि इस्लाम धर्म कभी भी इस तरीके की तोड़फोड़ करना हमें नहीं सिखाता है. और मोहम्मद गजनी के बारे में वो कहते हैं कि मोहम्मद गजनी वॉज नॉट ए रिलीजियस प्रीचर. वो यहाँ धर्म प्रसार के लिए नहीं आया था, वो एक स्वार्थी आदमी था जिसको संपत्ति का लालच था, क्योंकि उसको मध्य एशिया में लड़ाई लड़नी थी और यहाँ से उसको संपत्ति बड़ी आसानी से मिल जाती थी भारत से. और मंदिर तोड़ने के पीछे भी उसका उद्देश्य यही था कि वो यहाँ की संपत्ति ले जाए, क्योंकि मंदिरों में बहुत संपत्ति हुआ करती थी. और धर्म का इस्तेमाल केवल उन्होंने अपने फायदे के लिए, लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए किया, और वो वास्तव में इस्लाम का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ये उन्होंने समझाने की कोशिश की. तो ये जो मध्यकाल का जो हिंदू मुसलमानों का जो संघर्ष था, उसको उन्होंने उसके पीछे के आर्थिक कारण ढूंढने की कोशिश किए, और जनरली एक स्टैंड लिया, जनरली एक बात कहने की कोशिश की, ये धार्मिक संघर्ष नहीं था, ये आर्थिक संघर्ष जरूर था. हाँ, और वो ये भी कहते हैं कि इस्लाम धर्म के सबसे बड़े शत्रु वही होते हैं जो बहुत कट्टर मुसलमान होते हैं, दूसरों को टॉलरेट नहीं करते, जैसे कि मोहम्मद गजनी था. हाँ, उसी तरीके से मध्यकाल में जो लिखान हुआ था, उसमें ये भी कहा जाता था कि सल्तनत का जो रूल है, सुल्तान जो है बाहर से आए हैं और ये मुसलमानी सल्तनत है वगैरह वगैरह. तो उन्होंने ये समझाने की कोशिश की अपने लिखान में कि ये लोग बाहर से, इनके पूर्वज जरूर बाहर से आए थे, लेकिन सुल्तानों के समय तक ये सारे के सारे भारतीय हो चुके थे. ये उन्होंने अपने लिखान में समझाने की कोशिश की. मुस्लिमों को उन्होंने अपने कई बार ये समझाने की कोशिश की कि जिस तरीके से कम्युनल धार्मिक वातावरण जो अभी संकीर्ण हो रहा है, टॉलरेशन कम हो रहा था उस समय 1927-28 में, तो ही ट्राइड टू communicate to the Muslim that you should not get carried away by this communal frenzy. Of course, he was not successful. That is the reason we have that India and Pakistan as a divide. Next, Alauddin Khilji
का जो प्रशासन था, अलाउद्दीन खिलजी को भी आमतौर पर हिंदू विरोधी ऐसे कई इतिहासकारों ने पोर्ट्रे किया है। लेकिन ये मोहम्मद हबीब का कहना था कि उसने जिन जमींदारों को हटाया, जमींदार जरूर हिंदू थे, लेकिन जमींदारों को हटाने से जो निचले जाति के लोग थे उनका फायदा हुआ, क्योंकि जमींदार आमतौर पर ऊंची जाति के होते थे और वो निचले जाति के लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे, ये भी उनका कहना था। तो इस तरीके से उन्होंने इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश की। मुसलमानों के आने के बाद में तुर्क लोगों ने कैसे शहर में रहना शुरू कर दिया, शहर बसाना शुरू कर दिया, अर्बनाइजेशन हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ने लगी। मार्क्सिज्म के विचारों का मोहम्मद हबीब के ऊपर काफी प्रभाव था। लेकिन वो इस बात को मानते थे कि जिस तरीके से क्लासिकल मार्क्सिज्म कहता है कि इतिहास की हर घटना के पीछे आर्थिक कारण ही केवल होता है, उस बात से वो सहमत नहीं थे। और वो कहते थे कि इतिहास को दिशा देने वाली और भी कई विचार, और भी कोई बातें होती है, जैसे कि फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड, इथिक जिसको हम कहते हैं, रिलीजियस बिलीफ होते हैं, ये भी इतिहास को प्रभावित करते हैं। तो इस तरीके से इनका जो महत्वपूर्ण जो योगदान रहा है, वो ये कोशिश उन्होंने की है कि हिंदू मुसलमानों की दूरियां कम हो, मोहम्मद गजनी जैसे व्यक्ति को मुस्लिम अपना हीरो ना माने। मोहम्मद गजनी ने जो मंदिरों के ऊपर आक्रमण किए थे उसके पीछे आर्थिक कारण था, ये उन्होंने अपने लिखान में समझाने की कोशिश की। उनकी जो किताबें थी, सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। हजरत अमीर खुसरो ऑफ दिल्ली, अमीर खुसरो एक पोएट थे और जो कि सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और ये सूफीज आमतौर पर मुस्लिम जरूर हुआ करते थे, लेकिन उसमें से बहुत सारे सूफीज जो थे वो काफी लिबरल माइंडेड थे, वो हिंदू और मुसलमानों में फर्क नहीं करते थे, उनके दरबार में हर कोई आ सकता था। तो इन्होंने सूफी का अध्ययन किया, सूफी की बातें लोगों के सामने रखने की कोशिश की। उद्देश्य अर्थात वही था कि हिंदू और मुसलमानों में दूरी ज्यादा ना रहे। पॉलिटिकल थियरी ऑफ दिल्ली सल्तनत, ये किताब उन्होंने लिखी। पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड, ये किताब उन्होंने लिखी। फिर उनकी जो किताब है वो कलेक्टेड वर्क ऑफ प्रोफेसर मोहम्मद हबीब, इस नाम से भी एक प्रकाशित है, जिसको खलीक अहमद ने एडिट किया है। सम एस्पेक्ट्स ऑफ द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, ये उन्होंने ये किताबें उन्होंने लिखी। तो ये जो राष्ट्रवादी इतिहासकार है, दो इतिहासकारों की चर्चा हमने की, केपी जायसवाल, मोहम्मद हबीब। केपी जायसवाल प्राचीन भारत के बारे में प्रशंसात्मक काम करते हैं, और मध्यकाल का जो युग था वो साम्राज्यवादी इतिहासकार कहते थे कि हिंदू मुसलमानों के संघर्ष का युग था, जिसको कि मोहम्मद हबीब रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि संघर्ष के पीछे इकोनॉमिक, आर्थिक कारण बहुत महत्वपूर्ण था। और ये जो नेशनलिस्टिक हिस्टोरियन थे आमतौर पर, उनमें कई सारी कमियां थी। एक तो उन्होंने प्राचीन भारत को बहुत ज्यादा प्रशंसात्मक तरीके से लिखा। उसमें कई बार जिसको हम लोग कहते हैं निष्पक्षता, ऑब्जेक्टिविटी इज बीइंग लेफ्ट बिहाइंड। हिस्ट्री इज बीइंग यूज्ड टू क्रिएट द प्राइड, एंड दैट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री, इट इज a हिस्ट्री रिटन विद द पर्पस। हमारा भूतकाल बहुत अच्छा था, इस तरीके के विचार सरणी भी इस तरीके के इतिहास लेखन से ज्यादा शुरू हो गई। पीपल स्टार्टेड टेकिंग प्राइड इन पास्ट इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट फ्यूचर। देयर वाज एन एक्सेगरेटेड क्लेम नाउ अमंग द एक्सट्रीम नेशनलिस्टिक हिस्टोरियन, लाइक हमारे यहाँ पर एरोप्लेन भी हुआ करते थे क्योंकि रामायण में हवाई जहाज का उल्लेख है वगैरह वगैरह। सो दैट इज नॉट अ साइंटिफिक साइंटिफिक स्टेटमेंट। स्पिरिचुअल सुपेरियरिटी, स्पिरिचुअली हम लोग ज्यादा सुपेरियर है, ये बात भी कहने की कोशिश की गई। नेशनलिस्टिक हिस्टोरियन के प्रभाव में भारतीय संस्कृति ये सबसे पुरानी है, ये भी दिखाने का कोशिश किया गया। उदाहरणार्थ ऋग्वेद को ही ले लीजिए, ऋग्वेद कब का बना, इस बात को लेके थोड़ा मतभेद है। तिलक कहते हैं कि 4000 बीसी पुराना है, मतलब आज से करीब करीब 6000 साल पुराने ऋग्वेद है। और मैक्स मुलर, जिन्होंने काफी अध्ययन किया है भारतीय परंपरा का, उनका कहना था कि नहीं, 1200 बीसी के आसपास के, मतलब आज से करीब करीब 3-3.5 हजार साल पहले के। तो जितना ज्यादा पुरानी हमारी संस्कृति रहेंगी उतने ज्यादा हम ज्यादा प्रगतिशील है, ज्यादा अच्छे हैं, ये दिखाने का एक जो ट्रेंड था वो हम इस तरीके के इतिहास लेखन में देखते हैं। केपी जायसवाल ने बड़ा अलग अलग तरीके से जो संस्कृत के शब्द थे उसको इंटरप्रेट किया। और एल भाषम ने हिंदू पॉलिटी, जो केपी जायसवाल की किताब थी, उसके बारे में लिखा कि केपी जायसवाल एक वकील की तरह काम करते हैं। वकील को अपनी बात मनवानी होती है, अपना पॉइंट प्रूव करना होता है। तो वो क्या करते हैं, जो एविडेंसेस उसके सामने होते हैं, ही मेक्स सिलेक्टिव यूज ऑफ एविडेंसेस, ही डू नॉट यूज ऑल द एविडेंसेस। All right, so that is a problem with this kind of writing, that you have already decided that India was a great country, and in order to prove your country as a great, you select certain evidences. That is not an objective interpretation. All right. फिर भारत के लोगों को ब्रिटिशों ने हराया, उसका भी जस्टिफिकेशन कुछ देने की कोशिश की गई। उदाहरण के तौर पर प्लासी की लड़ाई में मीर जाफर ने षड्यंत्र किया था, ब्रिटिशों के साथ में हाथ मिला लिए थे, इसलिए भारत के लोग हार गए, इस तरीके के स्टेटमेंट किए जाने लगे। सिख लोग भी इसलिए हार गए कि उनके साथ में उनके जो लीडर थे
दे हैव जॉइन हैंड्स विद द ब्रिटिशर्स। लेकिन जो ब्रिटिशों के अच्छे गुण थे उसको निग्लेक्ट करने की कोशिश की। ब्रिटिश वेयर मोर यूनाइटेड पीपल, ब्रिटिश वेयर टेक्नोलॉजिकली पॉलिटिकली मोर एडवांस पीपल, दे हैड अ स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ नेशनलिज्म। इस बात को निग्लेक्ट करने का ट्रेंड इस तरीके के राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में हमें दिखाई देता है। और जो गलतियां भारत के शासकों ने की थी, भारत के शासकों ने जो क्रूएलिटी दिखाई थी, उसको ये हाइड करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पर जो ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला ने कई सारे ब्रिटिश लोगों को, जिसमें कुछ बच्चे और औरतें भी थी, उनको एक छोटी सी खोली में रात भर कैद रखा था, और दूसरे दिन बाद उनमें उसमें से कई लोगों की मृत्यु हो गई थी क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। तो इस बात को रिजेक्ट करने की कोशिश की, या फिर इस बात के बारे में नहीं बोला जाए। 1857 के समय में नहीं नहीं, 1857 के समय में नहीं, उसके पहले ही ये जो बक्सर की लड़ाई जो शुरू हुई थी, उस समय मुंगेर में कई सारे ब्रिटिशों की हत्या कर दी गई थी। उसको भी राष्ट्रवादी इतिहासकार आमतौर पर रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात ये थी कि प्राचीन भारत का इतिहास का अध्ययन करते करते मध्यकाल में जब एक राष्ट्रवादी इतिहासकार आए, तो विशेष रूप से हिंदू राष्ट्रवादी इतिहासकार जनरली जो मराठा, राजपूत और सिख, इन तीनों का जो संघर्ष था साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ, और उस समय साम्राज्यवादी ताकतें कौन थी? वो मुस्लिम्स थे, दिल्ली के सुल्तान थे या मुगल थे। तो इनके खिलाफ जो लड़ने वाले जो लोग थे वो नॉन मुस्लिम थे। राजपूत और मराठे तो हिंदू थे, और सिख उनका अपना अलग रिलीजन है। तो आमतौर पर प्रशंसा इन लीडर की जाने लगी जिन्होंने मुस्लिम इंपीरियलिज्म के खिलाफ में लड़ाई लगी। तो जो राष्ट्रवादी जो डायलॉग है, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का जो आमतौर पर जो ढांचा है, वो प्रो हिंदू ज्यादा हो गया, और उसी का परिणाम, उसी का रिएक्शन मुस्लिम इंटेलेक्चुअल में हो गया। जिस तरीके से हिंदू संस्कृति बहुत ज्यादा अच्छी थी, ये दिखाने की कोशिश हिंदू इंटेलेक्चुअल ने किया, और उसी के रिएक्शन में कई मुस्लिम इंटेलेक्चुअल ने मुस्लिम संस्कृति ज्यादा अच्छी थी और हिंदू कैसे बैकवर्ड है, ये भी लिखने की कोशिश की। हाँ, फिर ये देखिए, ये जो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन था, ये केवल एक सिंगुलर विचारधारा नहीं थी। इसमें जैसे कि हिंदू राष्ट्रवादी इतिहास लेखन है जो कि हिंदू परंपरा की प्रशंसा करते हैं, मुस्लिम राष्ट्रवादी इतिहास लेखन है जो कि राष्ट्रवादी तो है लेकिन मुस्लिम परंपरा की प्रशंसा करते हैं। फिर एक परंपरा इसमें ऐसे भी आई जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम एक साथ थे, इनमें कोई संघर्ष नहीं था, ये बहुत अच्छे से भाईचारे से रहते थे। ये भी अवास्तव बातें जो कि प्रैक्टिकली नहीं हुई थी, ये भी समझाने की कोशिश की, और सारा के सारा ब्लेम जो है उस समय की परिस्थिति का और हिंदू मुसलमानों के संघर्षों का, सारा के सारा जो ब्लेम है वो किसके ऊपर थोप गया? ब्रिटिशों के ऊपर थोप दिया गया कि भाई ब्रिटिश आए हैं और उन्होंने ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई, और हिंदू और मुस्लिम ये दो समाज में आपस के जो मतभेद थे, आपस के जो कॉन्फ्लिक्ट थे, इसको उन्होंने एड्रेस नहीं किया। ये एक बहुत बड़ा एक शॉर्टकमिंग, एक लकुना राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में हमें मिलता है। फिर जैसे कि डॉक्टर ताराचंद की जो किताब है इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर, उसमें ये बात वो कहते हैं कि मतलब आमतौर पर उनका कहना यही होता है कि हिंदू और मुस्लिम बहुत अच्छे से भाईचारे से रहते थे, जो कि उतनी वास्तविकता नहीं थी। उस समय भी कम्युनलिज्म जरूर था, ब्रिटिशों के समय वो ज्यादा बढ़ गया विभिन्न कारणों से। फिर राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में कई बार कुछ कॉन्ट्रडिक्शन भी हमें मिलते हैं। वी डू गेट सर्टेन कॉन्ट्रडिक्शन। फॉर एग्जांपल, द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियन ऑन द वन साइड से दैट इंडियंस आर वर्शिपर ऑफ नॉन वायलेंस, and on the other side they also say that Indian people have built up a huge empire. Now huge empire you cannot build without the strong army, and the strong army and war, it definitely involves violence. यहाँ पर डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन भी था, इंपीरियल ग्लोरी भी थी, यहाँ पर स्पिरिचुअल सुपेरियरिटी भी थी, मटेरियली भी हम लोग एडवांस थे। तो सारी बातें हमारे पास ही है, जो कुछ भी आप कहें हमारे पास में। इस तरीके की जो विचार सरणी है, ये दिस प्रिवेंट्स यू फ्रॉम लर्निंग एन ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री। यहाँ पर वुमेन का जो स्टेटस था एंशियंट इंडिया में, वो बहुत अच्छा था, और इसके विपरीत हम लोग देखते हैं कि वुमेन का स्टेटस ये अभी भी हिंदू समाज में बहुत अच्छा नहीं है। उनके डाउरी प्रथा है, बहुपत्नीत्व की प्रथा थी उस समय, एंड ऑल दिस काइंड ऑफ, लेकिन उसको हाइड करने की कोशिश की, और कहा जाने लगा कि हमारी संस्कृति को, स्त्रियों को बहुत सम्मान देता है। देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रोवर्शन, लॉट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। सो इस तरीके के इतिहास लेखन में हमें इमोशन ज्यादा मिलते हैं, रीजन कई बार कॉम्प्रोमाइज हो जाता है।
बट नेवरदलेस इट डज हैव सर्टेन एडवांटेज. देखिए, कोई भी ऐतिहासिक परंपरा परफेक्ट नहीं होती है, उसके प्रोज एंड कॉन्स हमें स्टडी करने हैं. तो इट हैज स्टिमुलेटेड द हिस्टोरिकल स्टडीज because the people who were now inspired by the nationalistic pride and nationalistic sentiment, and they try to understand our own history, that has given a lot of impetus. That emotion of patriotism or emotion of nationalism has given a lot of inputs to history writing. देन शुरू में जरूर ये इमोशन था, लेकिन धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि ये राइटिंग भी मैच्योर्ड होने लगी थी. उदाहरण के तौर पर आरसी दत्त की जो राइटिंग है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया और सिविलाइजेशन इन एंशिएंट इंडिया, ये काफी ऑब्जेक्टिव एनालिसिस हमें उनमें मिलता है. उसी तरीके से राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन ब्रिटिशों ने भारत का किया था, उसके बारे में भी जानकारी हमें मिलती है. इसके साथ साथ में राष्ट्रवादी इतिहास के कारण रीजनल हिस्ट्री जो थी, मराठा, राजपूत, हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, ये सारा ये दिस काइंड ऑफ हिस्ट्री हैड आल्सो बीन got encouragement. This kind of history also begin to be studied. So this is all about the nationalistic historian. We have studied about the reason behind the beginning, that is generally attack of the imperialistic historian. Then we have studied about the two important historian, KP Jaiswal, who wrote Hindu polity and history of India. Then Muhammad Habib, who tried to reconstruct Muhammad Ghazni. He also wrote on Sufi, Amir Khusro. And then there is a lot of shortcoming. There is an exaggeration. The nationalistic history writing is mostly pro-Hindu. And there is a lot of sentiment, involved. But nevertheless, it does have certain advantage that now, motivated by the nationalistic feeling, people have started studying Indian history. Nationalistic historians have made us aware about the economic exploitation. So this is where this topic also ends, nationalistic history writing. In case you are having any doubt, please let me know.